Hello, dear aspirants. So, in today's concept talk, we will be trying to explore some possible questions out of subspaces in your CSE and Forest Services exam. Not only will focus on the questions, but we will be trying to develop a conceptual clarity over the things, because in these particular cases, maximum of the times it happens they don't repeat the things. Yeah, if you have the conceptual clarity, then you feel like repetition. Otherwise what happens is you will feel कि यार इस बार तो कुछ अलग पूछ दिया करके, इस बार तो कुछ अलग पूछ दिया करके. It is something like that. So what we need to do is we must try to learn the concepts behind these subspaces. So agenda for today's lecture, the conceptual clarity. Number first, we will try to learn for matrix subspaces. And number second, polynomial subspaces. We'll also see the direct and indirect questions out of that. For both of the exams, CSE and Forest Services. चल, so start करें. I would like to start from a basic example and will try to give you an idea behind that. I'm giving you a question basically here. The question is, let W1 is the collection of all those matrices. Okay. Let W2 is the collection of like this. अभी what we wish to have here is, or suppose that यहाँ पर we have a condition as well. Okay. So we are interesting prove or disprove above sets are subspaces of the matrix space over the field of real numbers. ठीक है. Also write a basis and dimension and tell the dimension for each. That is the problem for us. Okay. अब मैट्रिसेस के केस में ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. अगर इसको मैं 4/7 का कर दूं मैट्रिसेस में, तब कैसे डील करेंगे? और वहां पर एक कंडीशन की जगह लाइक W2 में हम 4 कंडीशन और लगा दें तो क्या होगा? देन हाउ टू डील. अब आप कहेंगे तो सर उसी को करवाते ना, इसको क्यों करवाया आपने? क्योंकि मैं बीच से चीजें पिक नहीं कर सकता. मुझे पता है जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिक्स के थ्रू आपका डेवलप होगा, वो एकदम से हायर लेवल पे जाके नहीं होगा. तो सिस्टमैटिक लर्निंग को फॉलो करते हुए आई ट्राई टू डिकोड द कॉन्सेप्ट हियर. चलिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. अब आप देखिए W1 क्या है. Whenever you are dealing with the subspaces, I tell you one keyword. You can write down on your paper with the like na bold headings. W1 को पहचानिए बच्चा लोग की तरह एकदम. ठीक. W1 is the collection of those 2x2 matrices whose first row can have
any real entry, but the second row is fixed to be 0. बोलो हाँ या ना. कहने का मतलब अगर आप W1 की पहचान देखें, तो दिस इज द पहचान. अब इसके साथ में करना क्या है उस पे बात करते हैं. देखिए ध्यान से. सिंस द एलिमेंट 0 0 0 will belongs to W1, so what you will say, W1 is non-empty subset of M 2/2 over R. ठीक. तो सब स्पेसिस की कहानी तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बेसिस एंड डायमेंशन में बहुत ही कैटेगोरिकली ये बताना चाहूंगा कि भाई कोई भी स्पेस तुम उठा के लाओ, किसी का भी बेसिस लिखने के लिए आपको कोई दुख ना रह जाए, कोई टेंशन ना रह जाए. आज का कॉन्सेप्ट टॉक इसी पर बेस होने वाला है. तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब स्पेस चेक ही नहीं करना है, पहले देखें तो कि वो एक सब स्पेस है भी या नहीं, तब आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए. तो मान लो अगर कोई मैट्रिक्स A है W1 में, तो A मस्ट बी ऑफ द फॉर्म सम A1 A2 0 0 टाइप, जहां A1 A2 कहां से आएंगे, रियल से. मान लो B कोई दूसरी मैट्रिक्स है जहां B1 B2 कहां से आ रहे हैं, रियल से. राइट. मान लो मैं कोई स्केलर्स उठा लूं अल्फा बीटा फ्रॉम रियल, मैं ये देखूं अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, क्या ये भी W1 में है. अगर ये W1 में हुआ तभी तो सब स्पेस बनेगा ना. इतनी तो बात समझते हैं सब लोग. चलो. सो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, this will be alpha dot a1 alpha dot a2, I'm sorry, right. Since alpha is a real number, beta is a real number, so alpha dot beta will again be a real number, alpha dot a1 or alpha dot beta dot b1 type of. So ultimately you have some c1 c2 0 0 type, where c1 and c2 are real numbers, so this will belong, this matrix will belong to W1 or not. यही तो क्वेश्चन था आपका. तो by necessary and sufficient condition, yes, W1 is a subspace of the matrix space 2/2 over R. In the same manner you can show W2 is also a subspace. So those are the basic things you must try. अब हम मेनली इंटरेस्टेड है बेसिस एंड डायमेंशन में. ओके. सिमिलरली वी कैन शो W2 over R is also a subspace of M type 2/2 over. अब देखिए मैट्रिक्स में सब स्पेसिस का बेसिस कैसे लिखा जाए, या कोई भी आपको मान लो एलिमेंट आपने उठाया, हाउ टू राइट बेसिस. ध्यान से देखिएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप W1 की बात करें, तो अगर आपको इसका बेसिस चाहिए तो बेसिस का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा सबसेट चाहिए W1 का जिसके वेक्टर्स, जिसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, मतलब उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो किसी के. दूसरा, वो सेट उस W1 को स्पैन कर रहा हो लीनियरली. बेसिस के लिए यही रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. तो हाउ टू राइट बेसिस, अगर आप इसमें देखें
फ्री चॉइसेस, देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, लेट्स टेक ए सबसेट एस ऑफ डब्ल्यू। देखिए इसका एक वे है यहां पर लेने का, कैसे ले रहे हैं, मान लो ए को 1 ले लिया, दूसरी फ्री एंट्री को 0, फिर पहली फ्री एंट्री को 0, दूसरी को 1। अब इससे होगा क्या, अब आप कहेंगे सर आपने यही क्यों लिया, इससे होगा ये डियर फेलोज, अगर आप ऑब्जर्व करें तो चूंकि एस एल आई चाहिए, तो जो आपकी फ्री चॉइसेस है, अगर आप उसमें एक कंपोनेंट को नॉन जीरो और बाकी सबको जीरो ले लें, तो ये अगर इसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ते जाएं तो वो कभी एक दूसरे के लीनियर मल्टीपल नहीं बन पाएंगे। ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये चीज लिख दी जाए, आप मरते मर जाइए, इनमें से कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं हो सकता। इस इंट्यूशन, इस ऑब्जर्व को यूज करके हम बेसिस लिखने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बेसिस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्री चॉइसेस है, जो चॉइसेस है हमारे पास, जैसे ए बी कोई रियल नंबर हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, एक बार ए को नॉन जीरो, बाकी बी को जीरो, फिर ए को जीरो, बाकी बी को नॉन जीरो, जितनी फ्री चॉइसेस रहेंगी, अगर आप इस तरीके से एक सबसेट लेते हैं W1 का, तो होगा क्या, यू कैन ऑब्जर्व और यू कैन गो बाय द प्रोसीजर एज वेल, कि एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड लीनियर स्पैन ऑफ एस अगर आप देखें तो दैट विल गो टू W, दैट इज all elements of W can be written as linear combination of vectors of S। और ऐसा क्यों है, एकदम बच्चा लोग की तरह यार क्या लेना है आपको, 2300 लिखना है मान लो, so this can be written as 2 times 100 प्लस 3 टाइम्स, कुछ भी हाथी घोड़ा पालकी लेते रहिए, राइट। सो ये जो प्रोसीजर फॉलो किया गया बेसिस के लिए, इसका मंतव्य, इसका मकसद क्लियर हुआ या नहीं, एकदम ईमानदारी के साथ कहिए, राइट। W1 पे अगर हाथ डाला जाए तो ज्यादा मजा आएगा, W2 पे सॉरी, देखिए ध्यान से, सिंस W2 क्या है, क्या आप मुझे ये बताएंगे W2 के पास फ्री चॉइसेस कितनी है, मतलब कितनी चॉइसेस को आप फ्रीली चूज कर सकते हैं, ABC 3 भाई अगर ए को चूज किया, बी को चूज किया, सी अपने आप सेटल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि W2 की पहचान क्या है, W2 के अंदर वो मैट्रिसेस आएंगी जिनकी ये एंट्रीज रियल हो सकती हैं, ये जीरो फिक्स है, लेकिन ये तीनों एंट्रीज रियल इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। बोलिए चमका कि नहीं? अब आप कहेंगे हाँ हाँ सर बहुत बढ़िया हो गई बात, अब तो बन गई बात, लेकिन मैं आपको थोड़ा और कुछ चमकाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। दिस मीन्स W is the collection of where A, B, C are satisfying, ध्यान से देखिएगा, a system of linear equations AX equals to 0, where A matrix is 1 1 1 0 0 0 0 0 0, X is ABC,
देख लीजिए, अगर आप ए एक्स करेंगे, आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो वही कंडीशन आपको मिल जाएगी कि नहीं। आप चाहते हैं W2 के पास प्री चॉइसेस कितने हैं, उसी के हिसाब से तो बेसिस लिख देंगे ना। मान लो 5 चॉइसेस हो गए, 5 तो हो ही नहीं सकते, 4 तो 3 तो है ही उसके पास टोटल। अब 3 में से मान लो एक डिपेंड कर रहा है किसी पे, तो 2 चॉइसेस बचे, तो पहले एक चॉइस को 1 ले लो, बाकी को 0, फिर दूसरे को 1, बाकी को 0। ऐसे तो बात होगी। तो कहने का मतलब अगर आप W2 के अंदर चॉइसेस देखना चाहें, सो नंबर ऑफ चॉइसेस that will be equal to number of free variables in the system ax equals to 0. Say yes or no. यही तो होगा ना। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन ax equals to 0. ax equals to 0 में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं n minus r, where n is the number of unknowns and r is the rank of the matrix. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक को मिस मत कीजिए, बिकॉज देयर आई हैव डिकोडेड इन अ वेरी परफेक्ट, मतलब व्हाट आई फील इज इन अ वेरी गुड मैनर फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एवरीथिंग आई डिस्कस देयर थ्योरेटिकली एज वेल। तो अब अगर आप यहां पर देखें, रैंक ऑफ ए क्या है, 1, नंबर ऑफ अननोन कितना है 3, सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना हुआ 3 minus 1 is 2. फेयर और नॉट, एकदम जिम्मेदारी के साथ कहिए। अब मान लो आपको इसका बेसिस लिखना है, ये तो जस्ट थिंकिंग है ना। टू राइट अ बेसिस फॉर W2, क्या प्रोसेस बताया, मान लो ए और बी को फ्री चूज कर लीजिए, सी अपने आप फिक्स, तो ए को 1 बी को 0, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 चाहिए, तो सी का वैल्यू -1, क्योंकि ये तो अपने आप फिक्स ही है। अब ए को 0 बी को 1, तो ये अपने आप हो गया। बेसिस में कितने एलिमेंट 2, सो डायमेंशन ऑफ W2 इज 2 एज वेल, यू कैन क्रॉस चेक एज वेल। कहिए एकदम आनंद के साथ आपको चीजें विजुअलाइज हुई या नहीं मैट्रिक्स के बारे में। अब यहां एक इक्वेशन की जगह 4 इक्वेशन लिखी होती तो करते क्या, सिस्टम लिखते ax इक्वल्स टू 0, ए को एकलन फॉर्म में रिड्यूस करते, रैंक ऑफ ए पता चल जाता, नंबर ऑफ फ्री चॉइसेस पता चल जाते, और रिड्यूस सिस्टम से फिर बेसिस लिखना, क्योंकि यहां पे जैसे एक ही इक्वेशन था तो सीधा सीधा लिखते गए, ए 1 है बी 0 है तो सी का वैल्यू क्या होगा। अब मान लो वहां 4 इक्वेशन होती तो जो रिड्यूस्ड सिस्टम मिलता वहां से ये एलिमेंट्स लिखे जाते, क्योंकि वहां से सॉल्व करना आसान होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, नहीं समझ पा रहे तो एक कलाकारी कराई जाए, बताइए। राइट द क्वेश्चन प्लीज। राइट अ बेसिस फॉर W इक्वल्स, मान लो A B C D E F, जहां A B C D E F जो हैं वो रियल से हैं, देन सॉरी राइट अ बेसिस लिखा तो चले, कैन यू ट्राई इट प्लीज, कोशिश कर सकते हैं इसकी। अब देखो इतना कॉन्सेप्चुअली मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रेगुलर बैचेस में भी फीडबैक्स तो आते ही है। बच्चे कहते सर ऐसे तो हमने नहीं सोचा था, हमें तो दूसरा शॉर्टकट बताया गया था। और मैं क्या कहता हूं आपसे, 50 चीजें मत पढ़िए, एक पढ़िए, उसके थ्रू 50 चीजों को आंसर करने की कोशिश कीजिए। आई गेस
यू विल बी गेटिंग द मैसेज, राइट। अब आप देखिए, अगर मुझे W के लिए फ्री चॉइसेस चाहिए होगा तो फ्री वेरिएबल्स या चॉइसेस फॉर W, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? दैट विल बी आंसर्ड बाई, किसके द्वारा आंसर दिया जाएगा? फ्री चॉइसेस फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax equals to 0 where a क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ 6 अननोन है, तो 1 + 1 1, बाकी 0 0 1 -1 1 0 0 1 -1 0, सॉरी, x क्या होगा? राइट। अब हमें क्या करना है? एक सिस्टम ऑफ सिस्टम हमें दिया गया है, उसको सॉल्व करना है, राइट। तो ax इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने के लिए हम a को एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर ले, यही तो करते हैं ना, और क्या करते हैं? तो लेट्स ट्राई टू रिड्यूस a इनटू एकलन फॉर्म। तो अगर आप a की बात करें, 1 1 1 0 0, ये एंट्री ऑलरेडी 0 है तो इसको यहाँ रखते हैं, इसको 0 बनाते हैं तो 1 -1 0 0 -1 -1 1 -1 0। अब इसको इसकी हेल्प से 0 बना दे, ऑब्जर्व कीजिए रैंक ऑफ ए क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? रैंक ऑफ ए इज 3, 3 नॉन जीरो रोज इन द एकलन फॉर्म। नंबर ऑफ अननोन्स क्या है? 6 ए बी सी डी एफ। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स क्या होंगे? विल बी 6 - 3। अगर आपको केवल डायमेंशन पूछा होता तो डायमेंशन आप लिख देते 3, अगर केवल डायमेंशन पूछा होता। चूंकि उसने कहा है राइट अ बेसिस एज वेल, तो आपको बेसिस भी लिखनी होगी। देखिए, आराम से देख लीजिए बिना किसी तनाव के, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी श्रद्धा आपकी है। लिखे बेसिस। अब W की बेसिस लिखने के लिए चूंकि उसके पास 6 अननोन्स हैं, उनमें से 3 फ्री है, ठीक। अब कौन से 3 फ्री लेने हैं हमें, उस पर काम करना है, ठीक है। अब आप अगर इस रिड्यूस्ड सिस्टम को देखें तो ये रिड्यूस्ड सिस्टम आपको क्या देकर जाएगा? a + b + c 0, दूसरा वाला देगा b - c + d = 0, तीसरा वाला देगा -2c, राइट, -2c + 2d - e = 0। देख लीजिए, यही बात है। चेक इट आउट। अब अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें इन तीनों इक्वेशंस से, मान लो मैं a का वैल्यू 1, ध्यान से देखना, b का वैल्यू 0, a b c को फ्री चूज कर लूं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं सोचने का। तो अगर मैं a b c को, रेड कलर यूज करता हूं ज्यादा मजा आएगा, a b c अगर तीनों फ्री चूज कर लिए तो ए बी सी तीनों से तीनों फ्री हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ये इक्वेशन इंडिकेट क्या कर रहा है? ए बी सी
all three cannot be free simultaneously. तो आपको C के अलावा कोई दूसरा एक फ्री वेरिएबल रखना ही पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस. तो लेट्स से मैंने D ले लिया फ्री चॉइस पे, ठीक है. अब BCD, अब यहां से देखते हैं क्या होता है. तो फ्रॉम 1 C का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1. C पता चल गया. फ्रॉम 2 क्या मिल जाएगा, D का वैल्यू 0 + 1, तो उधर जाके -1. अब मुझे पता चल गया ABCD, ठीक है. सो 3 गिव्स -2C, सो प्लस का 2, प्लस का 2D, माइनस का 2, माइनस E = 0, सो E का वैल्यू 0. यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. F अभी तक नहीं आया. F का क्या करना है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्रिएट हो सकती हैं. अब चूंकि रिकॉर्डेड सेशंस हैं इसलिए मतलब उतना कलाकारी यहां पर अलाउड नहीं है, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा. लेकिन इतनी सारी कलाकारी की जा सकती है कि कहिए मत. भाई F तो फ्री वेरिएबल है ही. बोलो हाँ या ना. हमने यहां D को फ्री वेरिएबल रखा जबकि D की तो वैल्यू मिल रही है मुझे, तो D भी फ्री वेरिएबल नहीं हो सकता. हालांकि मैंने सोचा नहीं था इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये एग्जांपल, लेकिन हुआ. क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट कॉलम को ऑब्जर्व करें, लास्ट कॉलम ऑब्जर्व कीजिए, 0 × मतलब आपको ये जो F है, F तो यहां अवेलेबल नहीं है, तो आपको F जो है वो एक फ्री एंट्री लेकर चलना पड़ेगा. दैट इज द लिटरल मीनिंग हियर. तो अब जाके आपको जो एलिमेंट एक मिलेगा, एक एलिमेंट मान लो आपने B1 दिया उसको नाम, A का वैल्यू 1, B का 0, C का -1, D का -1, E का 0, F का 0. तो आपने A को फ्री वेरिएबल लिया, कहां गया फ्री चॉइसेस, कहां गया, ये रहा. तो दिस कैन नॉट बी टेकन एज, दिस विल बी टेकन एज फ्री वेरिएबल B and A. दैट इज द मीनिंग हियर. अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अगला एलिमेंट लिखने के लिए क्या करूंगा, बोलिए बोलिए. A को 0, B को 1, F को 0, और बाकी की वैल्यू इन इक्वेशंस से निकाल देंगे. अगला एलिमेंट लिखने के लिए A को 0, B को 0, F को 1, और इन इक्वेशन से बाकी B C D E की वैल्यू निकाल देंगे. बताइए मैट्रिक्स स्पेस की कलाकारी क्लियर हुई या नहीं आपको. एकदम ईमानदारी के साथ कहिए, झूठ मूठ का आश्वासन मत दीजिए. और लगे हाथ फ्री वेरिएबल्स भी किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये भी क्रिस्टल क्लियर चमका या नहीं, विश्वास दिलाइए. कोई डाउट, कोई तनाव, कोई परेशानी? आई होप नो. मैट्रिक्स स्पेस इतना इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों, इस पे तरह तरह की कलाकारी की जा सकती है. तरह तरह की कलाकारी बता रहा हूं मैं. एक और कराऊं क्या? चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. आई एम सेइंग, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मान लो लेट W इक्वल्स, this is just a representation. A is the collection of 3x3 matrices. What I said? A is the collection of 3x3 matrices. मान लो इसके अंदर केवल वो मैट्रिसेस आ रही हैं 3x3 की जिनके लिए A इक्वल्स A ट्रांसपोज है, एंड
एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर्स, ऐसे समझिए। आपसे कहा गया check if WR is a subspace of M 3 by 3 के real matrices. If yes, then find a basis and dimension of WR. कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं तो कलाकारी सिखाने के लिए खड़ा ही हूं आज। सोचिए कैसे क्या किया जा सकता है। और YouTube कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड करने का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ फिलॉसफी का लेक्चर हो रहा है या कोई ह्यूमैनिटीज का टॉपिक है। होता क्या है ना, कई बार मुझसे भी कहा जाता है कि सर एकदम मतलब आप बताते रहिए, बच्चे सुनते रहेंगे। और मैं यही कंफ्यूजन में रहता हूं कि यार ये मैथ को सुन के करेंगे क्या। मतलब आज तक मुझे, आप लोग को अगर समझ में आती हो ये बात तो मुझे बता सकते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि मान लो मैं एक सीधा मतलब एकदम तड़तड़ तड़तड़ पढ़ाते चला जाऊं, जैसे फिलोसफी या ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट चलते हैं। क्या करेंगे आप, बार बार वीडियो को रोक रोक के पढ़ेंगे ना, यही तो करेंगे। और वीडियो को रोक रोक के ही पढ़ना है तो फिर उसको उसी सिस्टम में क्यों ना पढ़ लिया जाए जैसे लेक्चर पढ़ा जाता है। लेकिन ठीक है, अब जो भी है ट्रेंड, तो ट्रेंड के हिसाब से भाई चलना होता है। हालांकि पीपीटी वाले में मैं थोड़ा अभी तक क्रांतिकारी बना हुआ हूं कि कुछ लिख के नहीं लाना है, जो पढ़ाना है एकदम सॉलिड पढ़ाना है। गोला करके पढ़ाने वाला अभी तक मैं बचा हुआ हूं, देखते हैं कब तक बचते हैं। बड़ी निर्दयी दुनिया है ये। चलो, इसको कोशिश की आपने कि वेदर इट इज अ सब स्पेस और नॉट। बोलिए हाँ या ना। इट इज अ सब स्पेस और नॉट। देखिए ध्यान से, मैं एक और फाइनल पंच आपको दे रहा हूं। जब भी आप सब स्पेसेस का क्वेश्चन डील कर रहे हो, सबसे पहला काम डब्लू की पहचान क्या है। क्या पूछेंगे खुद से, डब्लू की पहचान क्या है। तो बोला डब्लू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज 3 by 3 real matrices which satisfy its transpose equal to itself। मतलब उस मैट्रिक्स के बराबर उसका ट्रांसपोज है। ये इसके हिंदी में कहानी हुई, राइट। अब इसको सोचने के दो तरीके हैं। कैसे सोचना है देखना ध्यान से। लेट इफ ए इज द मैट्रिक्स A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके डियर फेलोस, मान लो आपने ये मैट्रिक्स ले ली, और अगर ये मैट्रिक्स, देखना ध्यान से, लेट इफ A बिलोंग्स टू W देन इट मस्ट सेटिस्फाई W का पहचान। और W का पहचान क्या है कि वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी। लेट्स डू इट। अगर आप A इक्वल्स A ट्रांसपोज करने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर देगा कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ओके, अब आप कंपेयर कीजिए, क्या मिलेगा? A11 इज A11, A22 इज A22, A33 इज A33। क्या इंप्लाई कर रहा है? दिस इंप्लाइज डायगोनल एंट्रीज ऑफ A आर फ्री टू चूज। बोलिए, सॉरी, डायगोनल एंट्रीज आर फ्री टू चूज, यस और नो? अब अगर डायगोनल एंट्रीज आर फ्री टू चूज हैं, तो अगर मैं बेसिस लिखने जाऊंगा तो इन तीनों को वैसे ही कॉम्बिनेशन में यूज कर लिया जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तीन एलिमेंट तो बेसिस के यहां से चमक गए। अब अगला ऑब्जर्वेशन देखिए, फॉर नॉन डायगोनल एंट्रीज, अगर आप ऑब्जर्व करें A12 इक्वल्स A21, सॉरी, एंड सो ऑन, दिस इंप्लाइज अगर A12 फ्रीली चूजन है, देन A21 इज फिक्स्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि A21 तो A12 पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप नॉन डायगोनल की बात करेंगे, जैसे ही आप इन एंट्रीज को फिक्स करेंगे, ये एंट्रीज अपने आप फिक्स हो जाएगी। जैसे ही इस एंट्री को फिक्स करेंगे, ये अपने आप फिक्स हो जाएगी, बिकॉज A फॉलोइंग द प्रॉपर्टी A इक्वल्स A ट्रांसपोज। बोलिए, इज दैट क्लियर और नॉट? तो कहने का मतलब, अगर आप देखें, अगर मुझे इसका बेसिस ही लिखना होता तो मैं बेसिस के लिए क्या करता? क्या प्रोसीजर बताया है? पहले तो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर दूसरी डायगोनल एंट्री के लिए काम करना है, फिर तीसरी डायगोनल एंट्री, राइट? अब बाकी के जो तीन चॉइसेस हैं, A12 को चूज कीजिए, मतलब इसको 0, A12 ले लिया 1, जैसे ही ये 1 लिया, ये अपने आप फिक्स, बाकी सबकी कहानी फिल्मी। अब A13 को ले लीजिए 1, जैसे ही ये लिया तो ये अपने आप फिक्स। अब A22 वाले को ले लीजिए, 23 वाले को, सॉरी, जैसे ही ये लिया, ये अपने आप फिक्स। बोलिए, और अगर आप इसमें काउंट भी करते तो 3 ये फ्री चॉइसेस, 2 ये, 3 + 3 - 1 + 3 - 2, दैट इज 6 चॉइसेस। बोलो, कोई दिक्कत, कोई तनाव वाली बात? एकदम मतलब जिज्ञासा शांत हो पा रही है या नहीं? अब इस टाइप का झूठ मूठ का तमाशा अगर आपको करना हो, तो आप कितने ही टाइप के मैट्रिक्स में एग्जांपल्स उठा सकते हैं। ऐसे ही A इक्वल्स -A ट्रांसपोज के लिए उठाकर देख लीजिए, उसकी बेसिस बनाइए, देखिए वो सब स्पेस बन भी रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अच्छा, इसको सब स्पेस दिखाया आपने क्या? एनीवन, हैव यू शोन दिस एज अ सब स्पेस? दिखाया करिए भाई। देखिए, चूंकि अगर मैं 3 × 3 की 0 मैट्रिक्स ले लूं और इसका ट्रांसपोज करूं, तो आई विल गेट दिस इंप्लाइज दिस बिलोंग्स टू W। तो एक तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया और W नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यूज करने के लिए पहले W को नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ता है, राइट और नॉट? आगे बढ़िए। अब मान लो A अगर W में है, तो दिस इंप्लाइज W की पहचान क्या है? अगर B W में है तो W की पहचान क्या है? अब मान लो अल्फा R से ले लिया, बीटा R से ले लिया, राइट?
तो अल्फा ए प्लस बीटा बी, क्या ये इसका ट्रांसपोज अगर इसके बराबर हो गया तभी तो अल्फा ए प्लस बीटा बी डब्ल्यू में जाएगा? बोलो हाँ या ना। अल्फा ए प्लस बीटा वी डब्ल्यू में जाएगा अगर उसका ट्रांसपोज उसके। सो दिस कैन बी ओपन लाइक दिस। चूंकि अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स, सो देयर ट्रांसपोज इज लाइक दिस, ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी। चेक कीजिए क्या मिल गया आपको। अल्फा ए प्लस बीटा बी का ट्रांसपोज जो है वो अल्फा ए प्लस बीटा वी के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा ए प्लस बीटा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। So by necessary and sufficient condition, W over R is a subspace of M3R। बोलिए बात जमी या नहीं? नहीं जमी तो चिल्लाइए। अब मान लो अगर, चूंकि आप तो रट्टा मारने की आदत में हमेशा रहते ही है, अगर W एक ऐसा सेट कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लें, ठीक, मान लो W ले लिया होता AIJ 3x3 की मैट्रिसेस ले ली होती और ऐसे लिया होता कि A इक्वल्स माइनस ए ट्रांसपोज जहां AIJ, तो क्या यहां पर W सब स्पेस बनता? दैट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन कि क्या W सब स्पेस बनेगा। पहली चीज, अगर बना तो उसका डायमेंशन क्या होगा ये मुझे जरूर बताइए, क्योंकि अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वेट कर रहा है मेरे दिमाग में, उथल पुथल मचा रहा है कि बता दो ओपिन। नहीं तो ये पूरे कॉन्सेप्ट टॉक में पूरा फिर एक वो रह जाएगा कि यार जैसे ना चांद में दाग टाइप का। तो मैं अगले 5-7 मिनट आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इस कॉन्सेप्ट टॉक को हम थोड़ा सा बस ऊपर लेके जाएंगे। सॉरी एक्चुअली, इजाजत है या नहीं है? चलिए, इस वाले क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कीजिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं। मान लो W हमने एक सेट लिया जो कि 3x3 मैट्रिसेस से आ रहा है, A इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज है, ठीक, AIJ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं। देन मेरा पहला क्वेश्चन ये है, W इज अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस ओवर C, ठीक, W is a subspace over R. If yes, then find basis and dimensions. Sorry, please check it out. आराम से कीजिए, पूरा टाइम लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, दिमाग की आपकी थोड़ी सी बत्ती जला देगा। प्लीज ऑब्जर्व। बोलो भाई, एनी आइडिया?
चलाई। हाँ हाँ, आप ही कर दो मास्टर, वैसे ही यूट्यूब सेशन है ना। अब चलो, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। मैं थोड़ा आराम से इसको आपको, चूंकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, मेरा ये भी पर्पज रहता है, जल्दबाजी के चक्कर में चीजें छूट ना जाएं। ठीक। मान लो हमने एक मैट्रिक्स, जैसे पीछे वाले एग्जांपल में बच्चा लोग की तरह सोचा था, ऐसे ही इसको सोचते हैं। ठीक है, A11 प्लस आयोटा B11, A12 प्लस आयोटा B12, ओके, क्लियर है। ये एलिमेंट है एक, लेट इफ A belongs to W, this implies A must be equals to A conjugated transpose. तो अगर A इक्वल्स टू A conjugated transpose करना है, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, दिस A मस्ट बी इक्वल्स टू A11, इनका कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर ये A12 प्लस आयोटा B12 है, सो दिस विल बिकम A12 माइनस आयोटा B12। अगर ये A13 प्लस आयोटा B13 है, सो दिस विल बिकम A13 माइनस आयोटा B13। अगर ये A23 प्लस आयोटा B23 है, सो दिस विल बिकम A23 माइनस आयोटा B23। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, राइट, तो A इक्वल्स A ट्रांसपोज से, देखिए ध्यान से, फिर वही कहानी, फॉर डायगोनल एंट्रीज क्या होगा, A11 प्लस आयोटा B11 इक्वल्स A11 कैंसल्ड आउट, तो 2B11 इज जीरो, दिस इंप्लाइज B11 इज जीरो। क्या मैसेज दे दिया इसने, दिस इंप्लाइज all diagonal entries of A must be real, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। तो इमेजिनरी पार्ट अगर किसी एंट्री का जीरो है, तो मतलब वो एंट्री है रियल। तो अगर किसी मैट्रिक्स को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो उसकी डायगोनल एंट्रीज को रियल होना पड़ेगा। बोलिए, बात जमी या नहीं? डिड यू गेट द मैसेज और नॉट? हम्म। अब समझो आंसर टू द क्वेश्चन 1, ध्यान से देखिए। अगर मैं ओवर सी चेक कर रहा हूं, मतलब फील्ड जो है वो सी है, तो अल्फा सी से आ सकता है। लेट इफ अल्फा इज आयोटा, ठीक है, और ए डब्ल्यू में है, देन अल्फा डॉट ए विल बिकम आयोटा डॉट ए, और इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज होंगी विल नॉट बी रियल नाउ। दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट ए डब्ल्यू में नहीं जाएगा, सो योर आंसर इज नो। बोलिए, आनंद वाला सवाल था या नहीं था? बोलो भाई। W is not closed with respect to scalar multiplication. फेयर है?
W वेक्टर स्पेस बनेगा ओवर R, क्योंकि अब उसके ऊपर तो कहानी कुछ बची नहीं। अगर आपको प्रूव भी करना हो तो मैं उसका प्रोसीजर भी आपको दिखा देता हूं यहां पर। मान लो लेट A बिलोंग्स टू W, तो A इक्वल्स A कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन का भी सेम प्रोसेस से हो सकता है। मान लो B बिलोंग्स टू W, तो B मस्ट बी इक्वल्स टू B कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज, राइट। अल्फा बीटा अगर मैं रियल से ले लूं, अगर फील्ड R है तो अल्फा A प्लस बीटा B का कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज क्या होगा? अल्फा कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज A कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज बीटा कॉन्जुगेटेड B कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज। चूंकि अल्फा इज रियल एंड स्केलर, सो दिस मस्ट बी लाइक दिस। बोलो हाँ या ना। दिस मस्ट बी ए कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के, बी के। क्या मिल गया? अल्फा ए प्लस बीटा बी का कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज इक्वल्स अल्फा ए प्लस बीटा बी। सो अल्फा ए प्लस बीटा बी किस में चला गया? W में। सो बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन W इज अ सब स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। इसी प्रोसेस से पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता था जो मैंने दिखाया, नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रोसेस से अगर हम फॉलो करते तो क्या मिलता हमें? बोलिए। सेम प्रोसेस से अगर हम चले जाते तो हमें अल्फा कॉन्जुगेटेड, अगर अल्फा सी में है तो अल्फा इक्वल्स नीड नॉट बी, और अगर ऐसा नहीं होता तो यहां से यहां बढ़ना असंभव था। असंभव था तो यहां पहुंचना असंभव था, मतलब उस केस में वो मर जाता, वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं हो पाता। और यही कहानी पीछे की गई थी। बोलिए। एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? कोई डाउट कहीं भी, रत्ती भर भी अगर डाउट है तो कहिए, किसी को भी। अब जैसे मैंने उस केस में फ्री चॉइसेस निकालना बताया था, वैसे ही आप इसके साथ भी फ्री चॉइसेस निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ओवर सी तो बना नहीं। अब ओवर आर अगर आप देखें, देखिए ये एंट्रीज रियल चाहिए, तो ओवर आर 3 चॉइसेस तो हो गए डायगोनल के लिए फ्री चॉइसेस। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स एंट्री हो सकती है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स के लिए 2 रियल चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चॉइसेस में, एंड दैट इज योर आंसर। चेक कर लीजिए इसको। अब अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई तो आप वापस से एक्सप्लेनेशन पीछे वाला देखिए, यू विल गेट द आइडिया व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डू हियर। आई एम प्रीटी श्योर। ओके, सो अभी पॉलिनोमियल स्पेस वाली कहानी बची है, तो व्हाट आई हैव प्लान्ड इज कि अगला जो कॉन्सेप्ट टॉक होगा उसमें हम सारे सब स्पेसेस की स्टोरीज को ले लेंगे, जो पॉलिनोमियल वाला स्पेस हमारा रहेगा। पॉलिनोमियल को हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक में PYQs जो सेशन होगा वहां पर हम सब स्पेसेस एंड ऑल को उठा के इसको डील वहां कर देंगे आपके लिए, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग आज हमने मैट्रिक्स के जो सब स्पेसेस हो सकते हैं उन पर बात की, आपको कुछ होमवर्क भी दिया, होमवर्क भी करवा दिया जाए क्या? आप तो हमेशा ही यार लालची हो जाते हैं। हाँ, ए कॉन्जुगेटेड ट्रांसपोज में कोशिश कीजिए, यू विल गेट योर आंसर्स। ओके डियर फेलोज, क्योंकि मैट्रिक्स के केस में देखिए जितना चर्चा मैंने आपको की है, अगर आपने इतना काम मैट्रिसेस में कर लिया, और थोड़ा सा होमवर्क इसलिए दे देता हूं ताकि आप मतलब थोड़ा सा रेशनल थिंकिंग डेवलप करें।
हर चीज को रट कर नहीं कि अच्छा चलो इसका वाला तो आंसर सर ने बता दिया था तो मैं इसका कर देता हूं, मतलब मेरे को याद है तो मैं ऐसे कर दूंगा. You should not be in the habit of like that, because it may cause the disaster for you, my dear fellows. In spite of that, what you should do is you should try to explore ideas. You should try to develop a habit, develop a skill over the learned part in the concept talks. You would have observed कि I rarely say कि come in the regular sessions, come in the regular batch, join this or that. नहीं भाई, आपको डिसाइड करना है कि चीजें कैसे आगे बढ़ानी है. मुझे क्या दिक्कत है भाई, आप बताओ. मेरा काम है आपको ये फील कराना कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के उसको बेसिक्स से लेके टॉप तक कैसे ले जाया जाएगा. आप ऑब्जर्व करेंगे, मतलब बीच बीच में मैं बात करता रहता हूं, फिर भी चलो आज 5 मिनट और ले सकता हूं क्या? इफ यू से यस देन आई विल टेक ओनली. देखो, आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाएं, 2 टाइप के नोट्स या बुक्स आपको मार्केट में मिलते हैं. एक तो जो आपकी लाइफ को आसान बना देते हैं निगेटिव टर्म्स पे. कैसे? कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए अगर सब स्पेस बनाना है तो उसका डायमेंशन होगा, अगर n बाई एन का है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसका डायमेंशन होगा n माइनस 1/2 करके, और आपने रट दिया उसको. एग्जाम हॉल में क्या किया उसने, देखना समझना इस चीज को. क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, लेट W इज, ध्यान से देखते रहिए, A इक्वल्स AIJ. समझिए बात को. मान लो 3/3 की मैट्रिक्स ली और आपसे कहा AIJ इक्वल्स माइनस AJI और I नॉट इक्वल्स टू J. ठीक. एंड AIJs ऑल आर रियल एंट्रीज. एक आई ओपनर दे रहा हूं मैं आपको, तो प्रवचन मत समझना इसको. आपको एहसास होगा कि अगले 5 मिनट जो सर ने एक्स्ट्रा लिए उसका क्या मकसद था. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने. अब आप मुझे ये बताइए, इसका जरा डायमेंशन बताइए. मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये सब स्पेस है, मारो ना गोली इसको, सब स्पेस है, अब इसका डायमेंशन बताओ प्लीज. प्लीज टेल द डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस. Anyone? Anyone of you? Three into 3 plus 1/2. That is 6. Yeah, 3 into 3 minus 1/2. That is 3. क्या बोलिए? What you will answer for this? दो टाइप के स्टूडेंट होंगे. एक वो जिसने समझा, सर ने कहा था सबसे पहले W की पहचान देखो. ठीक, लॉजिकल. उसने देखा कि इसके अंदर वो एंट्रीज आएंगी जहां AIJ माइनस AJI हो जा रहा है. ठीक, वो लगा अपना लिखने कि यार डायगोनल एंट्रीज आर फ्री टू चूज, लेकिन अगर मैंने इसको D ले लिया तो इसको माइनस D होना पड़ेगा, इसको E ले लिया तो माइनस E होना पड़ेगा, लाइक दैट. ABCDEF सारे के सारे रियल नंबर्स. उसने इसको डिकोड कर लिया. टाइप 1 स्टूडेंट्स, ठीक, टाइप 2 स्टूडेंट्स जो कि रट्टा मार कि यार उसने जैसे ही देखा IJ को JI कर दिया,
अब पता नहीं आपको ऐसा फील आया हो या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये अनुभव कहता है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में भी जब भी स्टूडेंट्स को दिया, पहली बार में उन्होंने उसको स्क्यू सिमेट्रिक मान के ही सॉल्व कर दिया। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं 0 0 0। बोलो हाँ या ना। अगर A इक्वल्स माइनस ए ट्रांसपोज है तो डायगोनल एंट्रीज के लिए क्या हो जाएगा, A11 इक्वल्स माइनस A11, तो 2A11 इक्वल 0, दैट मीन्स A11 इज फिक्स टू बी 0। तो स्टीरियोटाइप क्या है दिमाग में कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चूंकि ये दिख रहा है लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया और उन्होंने इसको स्क्यू सिमेट्रिक तरीके से डील करके आंसर बोल दिया। अगर आपने इसको स्क्यू सिमेट्रिक डील किया होता तो W के अंदर जो मैट्रिसेस दिखती तो आपने डायगोनल तो 0 ले लिया होता और इनको आपने इस तरीके से लिख दिया होता ABC। अब जहां आपको यहां पे देखिए ABCDEF, फ्री चॉइसेस कितना है 6, और यहां पे फ्री चॉइसेस कितना है 3, एंड दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्योंकि उसने क्लियर कट आपसे बोला था कि नॉन डायगोनल के लिए ऐसा होल्ड हो रहा है, डायगोनल्स आर फ्री। डिड यू गेट द मैसेज और नॉट? सभी लोग ईमानदारी से कहिए, इज दिस क्लियर और नॉट सबको? तो इस रट्टाबाजी से बचना है। तो अगले 2 मिनट इसीलिए एक्स्ट्रा मैंने आपसे मांगे थे कि जब मैं आपसे बात करता हूं सिस्टमैटिक लर्निंग की, जब मैं बात आपसे करता हूं कि यू शुड प्रिपेयर इन राइट वे, दैट हैज डीप सेंस माय डियर फेलोज, दैट हैज द लाइक ना, यू कैन सो फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर मी। आपने देखा होगा कि डेफिनेशंस को कभी इग्नोर नहीं करना है, और जो चीज़ कॉन्सेप्चुअली इवॉल्व हुई है उसी के ऊपर अपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। बीएससी में मेरे सर ने क्या रटवा दिया था, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज द लिटरल वे टू टॉक, टू डिस्कस, टू डू द थिंग्स हियर। आई होप द सिस्टमैटिक लर्निंग का मीनिंग विल बी क्लियर टू ऑल। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अपने सजेशंस बताते रहिए। अगला सेशन बहुत फंटैबुलस होने वाला है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, बी इट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बी इट बेसिस एंड डायमेंशंस, पॉलिनोमियल स्पेस की जो बात आज होने वाली थी वो अब अगले कॉन्सेप्ट टॉक पे रखते हैं। सो इट्स एनफ फ्रॉम माई साइड। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड लक माई डियर फेलोज, नेवर हेजिटेट टू पुट योर वर्ड्स of appreciation or anything else, whatever you feel. Good luck.